Welcome to my YouTube channel. So in this particular video, I'm going to start with Unit 5 of Marketing, Class 12th, Emerging Trends in Marketing. So the first topic is Service Marketing. Before we start with this chapter, you should know the meaning of word service. What is service? Service is a deed, a performance, or an effort. Let me highlight this for you. अगर definition आपको exam में आती है, तो in that case, you can write down this definition that service can be rightly called a deed, performance, effort. See, service क्या है? This is an experience. Service cannot be seen, it cannot be touched, but you can only feel the services. Like a ride in Delhi metro, it is a kind of service. ठीक है, तो ये आप definition इसको learn कर लीजिएगा. Then comes characteristics of service. So this diagram I have drawn for you. यहाँ पे आपके 5 features highlighted है. One more important thing, exam में एक बारी ये question आया हुआ था. In the form of the question was what are the limitations of service marketing mix. तो उस टाइम पे बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, बट लिमिटेशंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उस टॉपिक में भी आपको सर्विसेज के फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ही मेंशन करने. सो सर्विसेज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ सर्विस मार्केटिंग, राइट. तो पहला जो फीचर है दैट इज इंटेंजिबिलिटी. व्हाट इज इंटेंजिबिलिटी? इट मींस कि सर्विसेज कैन नॉट बी seen, touched, but it can only be felt. So that is called as intangibility. It's an experience which you can feel. So example, babysitting. Babysitting you cannot, it's a kind of service which is provided. Schooling, ticketing. तो ये सारे examples हैं. Next is simultaneity. See, goods के केस में क्या होता है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम होता है. दे डू नॉट गो साइमल्टेनियसली इन केस ऑफ गुड्स. क्यों? क्योंकि सपोज प्रोडक्शन हो रही है गुड्स की इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बट कंज्यूमर उसको खरीद रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों साथ साथ नहीं हो रही. सो गुड्स के केस में द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन डू नॉट गो टुगेदर, बट इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन गो साइमल्टेनियसली. सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. व्हाई? I'm giving you this, I'm explaining this with the help of example. Suppose आप hair cutting के लिए जाते, तो जो service provider है, that is barber, he will cut your hair and at the same time you as a consumer will avail the services at the same time. So production and consumption goes simultaneously. So इसमें आप जो example दे सकते हैं, plumber का दे दो, आप hair salon का भी दे सकते हो, जो मैंने अभी explain किया है. Then heterogeneity. In this, no two services can be same. So why it is not same? Because service providers जो होते हैं, they are different, right? And when they provide the services, so you cannot expect that the quality of services they are going to provide, it is going to be same. They will be different. And heterogeneity की वजह से it makes it difficult to standardize the quality of service. Heterogeneity का मतलब क्या है? Heterogeneity का मतलब ये है कि services जो हैं they are not uniform, they are different. तो इसमें आप लिख सकते हो, I'm just writing it here for you. Services are not uniform. I will also try to upload many mind maps for you so that आपके लिए एग्जाम में रिवीजन इजी हो जाए. Then comes perishability. Perishable का मतलब क्या है? Services are perishable in nature. They are perishable. You cannot store the services for future reference. Example, अगर आप कोई मूवी की टिकट्स बुक कराते हैं और किसी भी रीजन से आप मूवी देखने नहीं जा पाए, तो नेक्स्ट डे आप थिएटर में जाके ये नहीं बोल सकते कि मेरी कल की टिकट बुक थी और मैं नहीं आ पाया और आज मैं मूवी आई विल सी द मूवी टुडे. वंस इट हैज एक्सपायर्ड, इट हैज एक्सपायर्ड. सो यू कैन नॉट स्टोर इट. गुड्स के केस में क्या होता है, गुड्स आप स्टोर भी कर सकते हो, बट सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, दे आर पेरिशेबल.
सी एग्जाम्पल भी दिया है, अ शेड्यूल्ड फ्लाइट इज इफ नॉट फिल्ड विद फ्लायर्स गोज इन वैन फॉर एवर, वैन की जगह वेन होना चाहिए था, मिसस्पेल्ड है। देन नॉन ओनरशिप, सी गुड्स के केस में क्या होता है कि अगर आपके गुड्स इफ इट इज सोल्ड बाय द सेलर टू द बायर, ओनरशिप किसके पास अब चली जाएगी, बायर के पास में। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता है। वंस द सर्विसेज इज प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर बाय द सर्विस प्रोवाइडर, the service provider will remain it the services will remain with the service provider, क्योंकि ओनरशिप सर्विसेज के केस में ट्रांसफर नहीं होती है बायर को। सो कस्टमर कैन नॉट ओन द सर्विसेज। ठीक है, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट लेता है डॉक्टर से, तो हु विल रिमेन ओनर ऑफ द सर्विसेज, डॉक्टर। आपको सिर्फ सर्विसेज, आप फैसिलिटीज को कंज्यूम कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, बट ओनर तो नहीं होगे। ओनर कौन होगा, डॉक्टर। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, तो यू विल differentiate between goods and services on these 5 bases only. Intangibility आप फर्स्ट डालेंगे, goods are tangible, services are intangible. सेकेंड, simultaneity अगर आप लेते हैं तो goods में आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन कंजम्पशन are not they do not occur simultaneously, whereas services के केस में they occur simultaneously. हेट्रोजीनियसिटी में आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट कैन, गुड्स के केस में गुड्स कैन बी यूनिफॉर्म, दे कैन नॉट बी यूनिफॉर्म, इट मे और मे नॉट बी, बट सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस. पेरिशेबिलिटी, अगेन गुड्स, some goods are perishable, some goods are durable, but services they are perishable in nature. Non ownership, goods में the ownership passes to the buyer, but services के केस में the ownership does not passes to the consumer. सो यही आपके बेसिस भी है डिफरेंशिएशन के, गुड्स और सर्विसेज का जब आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन देम, तो प्लीज टेक दीज फीचर्स एज अ कंसिडर दीज फीचर्स एज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट? थैंक यू.